اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس کو سیکھیں پڑھیں تو میں چند ایک باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ٹاپک کو سیکھنے جائیں گے وہ ہے روحانی نشو و نما۔ کیا ہے جی؟ روحانی نشو و نما۔ اکثر اگر ہم کمزور ہو جائیں تو ڈاکٹر کی سجیشنز کے مطابق ہم اچھی خوراک لیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی خوراک کو بڑھا دیتے ہیں، تو پھر چند دنوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری انرجی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، ہم ایک دم سے پھر اسی قوت میں، طاقت میں آ جاتے ہیں۔ تو آج یہی چند ایک نسخہ جات ہیں بائبل مقدس میں سے کہ ہم کس طرح روحانی طور پر توانا ہوں، مضبوط ہوں، اسٹرانگ ہوں، اور سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرچول مسلز جو ہیں وہ ہم نے کیسے کریٹ کرنے ہیں، کیسے ہم نے اسپرچول مسلز جو ہیں وہ بنانے ہیں۔ آپ کو ہر شخص تندرست نظر آئے گا، طاقتور نظر آئے گا، مضبوط نظر آئے گا، لیکن جب روحانی زندگی کی بات کی جاتی ہے تو وہ روحانی طور پر اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ تو آج یہی کچھ باتیں جو ہیں آج آپ کو سکھانے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہم کس طرح روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، روحانی طور پر ہم کس طرح اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے جو اسپرچول مسلز جو ہیں ہم ان کو بنا سکتے ہیں۔ اہل کلیسیا مل کر شاؤٹ کریں آمین۔ ایک حوالہ پڑھیں گے، لکھا ہے، پیچھے بے شک پڑھ لیں لیکن کلسیوں باب نمبر 2 اور آیت نمبر 6 اور 7، اسی پر ہم آج زور دیں گے، اسی کو ہم آج فوکس کریں گے، اور آج تھوڑا سا کلام کو سنجیدہ بن کر آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ اور یہ آج پنجابی جو دسا تھانوں میں، اج تسی روحانی بادام کھان جا رہے ہو۔ آمین جی۔ سب پڑھیں گے، اگر پیچھے پڑھنا ہے پیچھے پڑھ لیں، اگر ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک ساتھ میں 1 2 3 کہوں گا تو ہم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ 1 2 3۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جاڑت پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ اہل کلیسیا مل کر شاؤٹ کریں گے آمین۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ مسیح کے وسیلہ سے زندگی کی کاملیت، اس کا انہوں نے سب ٹائٹل دیا ہے۔ اگر آج چرچ میں آپ سے پوچھوں کہ ہم کس طرح مسیح کی مانند بن سکتے ہیں تو چند ایک آپ خصوصیات یا کریکٹرسٹکس جو ہیں آپ مسیح کے بیان کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح مسیح کی مانند بن سکتے ہیں۔ کوئی آپ میں سے کوئی تجاویز، کوئی مشورہ، کوئی ایسی بات جو آپ نے محسوس کی ہے کہ ہمارے آقا کے اندر، ہمارے اندر بھی ایسی ہونی چاہیے، آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ خدا باپ کی مرضی کو جانتے، خدا باپ کی مرضی کو، جب تک خدا کا بیٹا یسوع مسیح زمین پر رہے ہیں انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ ویری گڈ۔ عاجزی کے ساتھ آپ نے مسیح کی، اگر آپ حالات زندگی کو دیکھیں تو مسیح کی زندگی کا جو محور تھا وہ عاجزی تھا، انکساری تھا۔ ویری گڈ۔ اور جی، دوسروں کو معاف کر کے، مسیح خداوند نے صلیب پر ہمیں یہ نمونہ دیا کہ باپ ان کو معاف کر۔ ویری گڈ جی نوید بھائی۔ دوسروں سے محبت کر کے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اپنا اکلوتا بیٹا محبت کی خاطر بخش دیا تاکہ جو بھی کوئی، ان کی ذات پات، ان کی نسل، ان کا رنگ، ان کی برادری کیسی بھی کیوں نہیں ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ویری گڈ۔ اور جی،
वेरी गुड। यीशु मसीह के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो वो दुआ करने वाला था। यीशु मसीह कहाँ कहाँ दुआ करते थे? हैकल में जाकर दुआ करते थे, पहाड़ पर जाकर, बियाबानों में जाकर, और तन्हाई में जाकर, अकेले में जाकर। ठीक है, ये यीशु मसीह यानी इस अंदाज से दुआ करते थे। इसका मतलब ये है चर्च, अगर हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं, मसीह की मानद बनना चाहते हैं, तो हमने भी दुआ गो बनना है। फिर खुदा की खादमा ने कहा कि वो हर सब्बत को हैकल में जाते थे, यानी ही वॉज रेगुलर टू अटेंड द सब्बत, यानी वो हर सब्बत को हैकल में जाकर खुदा की प्रेजेंस में होते थे, खुदा की मौजूदगी में होते थे। ये उनके बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमने चंद एक बातें जो हैं आज सुबह ली हैं। और लिखा है कि अगर हमने मसीह को अपना खुदावन मान लिया है, अगर हमने मसीह को अपना आका मान लिया है, अगर हमारा ईमान मसीह खुदावन पर है, तो अब हमने उसी की तरह चलते रहना है। हालेलुया। मैं आपसे आज चर्च यही तवक्को रखता हूं, या आपसे जो मेरी उम्मीद है वो यही है कि हम मसीह की मानद बने, ताकि जिस तरह मसीह खुदावन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसी तरह हम भी उनको तशकील दें। सब मिलकर कहें आमीन। खुदा की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं है कि खुदा कलीसिया बनाए, सिर्फ कलीसिया बनाए, बल्कि खुदा की ख्वाहिश ये है कि अगर कलीसिया बनाए तो वो तरक्की करे। कलीसिया अक्सर कहने नहीं कि जिन्ना मर्जी है खा लेंदा वा मुंडा, पर इनू लगदा लुगदा कुछ नहीं है। हमने ऐसी कलीसिया नहीं बनानी कि हम इस वक्त रूहानी ग़ज़ा भी ले रहे हैं, रूहानी खुराक भी ले रहे हैं, और चर्च फले ना, चर्च बढ़े ना। तो इसका मतलब ये है, पंजाबी च कहंदे ने कि इन्हू कुछ लगता ही नहीं है जी। इसका मतलब उसके बदन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चर्च मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिस शख्स के बदन च कोई खुराक ही नहीं पचदी, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੀ है? डॉक्टर की जरूरत है। ਜਿਹੜੀ कलीसिया रूहानी तौर पे तरक्की नहीं कर रही, तरक्की याफ्ता नहीं हो रही, रूहानी तौर पे अगे नहीं बढ़ रही, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ भी डॉक्टर की जरूरत है। और वो डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह, तबीब आजम। आज मैं चर्च नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं आज चर्च ग्रोथ की बात कर रहा हूं। चर्च की तादाद बढ़ने की तरफ मैं आपको लेकर जाने वाला नहीं हूं, बल्कि आज चर्च में हमने रूहानी तौर पर कैसे बढ़ना है। हमारा फोकस कलाम पर होना जरूरी क्यों है? हमारे हाथों में बाइबल मुकद्दस का होना जरूरी क्यों है? हमने कल एक मोटिवेशनल मैसेजेस जारी किए ताकि कलीसिया जो है, ईमानदार जो है, सबसे कीमती तोहफा जो जमीन के ऊपर खुदा ने हमें दिया है, हमारी औलाद से भी ज्यादा कीमती, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा कीमती, हमारे मालो असबाब से भी ज्यादा कीमती, हमारी शोहरत से भी ज्यादा कीमती, हमारे स्टेटस से भी ज्यादा कीमती, हमारी दौलत से भी ज्यादा कीमती वो खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। खुदा का कलाम है। ये सबसे कीमती तोहफा खुदा ने हमें इस रोए जमीन पर दिया है। अगर हम इसे छुपाए रखते हैं, अगर हम इसे घर में प्रिजर्व रखते हैं, अगर हम इसे अपने हाथों में नहीं उठाते, अगर हम इसका बोझ नहीं सहते, तो इसका मतलब इसमें लिखी हुई बरकतें भी हमारी जिंदगी में कभी नाज़िल नहीं होंगी। आपके बोझ, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी हर तरह की कश्मकश, आपके सारे चैलेंजेस, आपकी सारी मुखालफतें, आपकी सारी नाकामियां। और मैं आज आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि प्लीज चर्च को ऐसे नहीं बनाना हमने कि इस चर्च में तो कुछ पचता ही नहीं जी।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ लो, जितनी अच्छी मर्जी तालीम दे लो, फिर भी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में हमारी रूहानी जिंदगी सिक हो चुकी है। वी नीड डॉक्टर, हमें फिजिशियन की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है, हमें शिफा की जरूरत है, हमें इलाज मुआवजे की जरूरत है। चर्च, मैं आज आपको रूहानी तौर पर बेदार करने की कोशिश में हूं और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं आज सुबह में कि हमने सिर्फ नंबर्स में नहीं बढ़ना, बल्कि हमने रूहानी इकदार में बढ़ना है। चर्च वो दीवार तक चला जाए लेकिन दुआ करने वाले एक भी ना हो, तो वो दीवार तक चर्च का हमें फायदा क्या है? मैंने जानदार कलीसियाएं देखी हैं, मैंने पावरफुल कलीसियाएं देखी हैं। 7 लोग चर्च के कितने मेंबर जी? 7। और 7 कोई एशिया में खिदमत कर रहा है, कोई यूरोप में खिदमत कर रहा है, कोई अमेरिका में खिदमत कर रहा है, कोई साउथ एशिया में, कोई मिडिल ईस्ट में कर रहा है, कोई अफ्रीका में कर रहा है। 7 लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। शाउट करें आमीन। 7 लोगों की कलीसिया 7 बड़े आज़मों में जाती है। Isn't it amazing church? क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? दीवार तक चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूहानी कद में बढ़ जाना ये और बड़ी बात है। और यहां पर हमने आज जो सीखा है कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु को खुदावंद कबूल किया है ना, हम सब ने मसीह को अपना खुदावंद कबूल किया। जिन्होंने कबूल किया वो शाउट करें आमीन जी। जिन्होंने मसीह को अपना आका माना है शाउट करें आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना प्रभु, अपना निजात दहिंदा माना, शाउट कीजिए आमीन। अगर हमने मसीह को अपना आका, अपना खुदावंद कबूल किया है तो उसी तरह उसमें क्या करो जी? चलते रहो। डोंट स्टॉप। पॉज ना लगाएं अपनी जिंदगी में, पॉज ना हो। पॉज समझे? पॉज कुछ देर के लिए रुक जाना, नो। जितनी देर आप रुके रहेंगे उतनी देर आपकी बैटल जो है, आपकी जंग जो है वो इब्लीस से जारी रहेगी। आप चलते रहेंगे, इब्लीस आपका पीछा नहीं करेगा, इब्लीस आपको छूने नहीं पाएगा। जैसे ही आप पॉज हो जाएंगे, जैसे ही आप रुक जाएंगे, जैसे ही आप स्टैटिक हो जाएंगे, जैसे ही आप ठहर जाएंगे, चर्च, इब्लीस आप पर हमलावर हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ कम्स फ्रॉम क्राइस्ट। रूहानी तरक्की यीशु मसीह से मिलती है। यीशु के कदमों में आने से, यीशु के पास बैठने से, यीशु को गौर से देखने से, यीशु से दोस्ती करने से, नन ऑफ एनी एल्स, कुछ भी इसके अलावा नहीं है। सिर्फ एक आपकी रूहानी तरक्की का जरिया है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं आपको एक हवाला देता हूं, यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 5वीं आयत थी। मैं अंगूर का क्या हूं जी? दरख्त हूं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम मेरी क्या हो? डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलकर शाउट करें आमीन। मेरे अजीजों, वो मुझ में कायम रहता है और फिर वो बहुत सा फल लाता है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत होती है, उसकी जिंदगी में नरमी होती है, उसकी जिंदगी में इंकसारी होती है, उसकी जिंदगी में मुआफी होती है, उसकी जिंदगी में दुआ होती है, उसकी जिंदगी में रोजा की हालत होती है, और उसकी जिंदगी में खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस और खुदा की घर की इज्जत होती है। मिलकर शाउट करें आमीन। तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्पिरिचुअली चर्च ग्रो करना चाहते हैं, आज मैं आपको इश्योर करता हूं, यकीन दहानी आपको करवाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको रूहानी तौर पर तरक्की नहीं दे सकता। ना आपका चर्च आपको रूहानी तौर पर बढ़ा सकता है, ना आपकी इंसानी ताकत आपको बढ़ा सकती है, ना चर्च के बेशुमार प्रोग्राम्स आपको रूहानी तौर पर बढ़ा सकते हैं, ना आपके टैलेंट्स आपको रूहानी तौर पर बढ़ा सकते हैं। बल्कि अगर आपको कोई रूहानी तौर पर, अगर आपको कोई ताकतवर बना सकता है, आपके रूहानी मसल्स को मजबूत कर सकता है, तो उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया।
This is the best place where you meet Jesus. ये एक बेहतरीन जगह हो सकती है जहां पर आप यीशु मसीह को मिलते हैं, और यीशु मसीह ही मेरे अजीजों आपको रूहानी तौर पर बढ़ा सकते हैं। अहले कलीसिया मिलकर शाउट करें आमीन जी। पहली बात क्या मैंने अभी बताई कि आप यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शंस में आ जाएं। आपको रूहानी तौर पर सिर्फ एक ही बढ़ा सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह। और दूसरा जो स्पिरिचुअल मसल्स, हाउ टू बी स्ट्रांग इन स्पिरिचुअलिटी, कि किस तरह हम रूहानी तौर पर ग्रो कर सकते हैं, तो उसका दूसरा जो हल है वो ये है कि रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए आपके अंदर खुदा का कलाम होना जरूरी है। आप पहले अपने हाथ से रखो खुदा दा कलाम, किथे रखो पहले नंबर ते हाथ जे, ते उन्हें खोल के उन्हें अपने अंदर ले जाओ। दूसरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है कि आपके हाथ में भी खुदा का कलाम होना चाहिए और आपके अंदर भी खुदा का कलाम होना चाहिए। मिलकर शाउट करें आमीन जी, हालेलुया। और अमाल दूसरे बाब की 42वीं आयत में लिखा, और ये क्या करते थे, रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने, मिलके बंदे सी, और फिर रोटी तोड़ने, होली कम्युनियन, और दुआ करने में मशगूल रहे थे। ये 4 बातें आपने अपनी जिंदगी में करनी है। और लिखा है पहला पतरस दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, नौज़ादा बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। तो क्या लिखा है, नौज़ाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। और ये रूहानी दूध जो है ये खुदा का जिंदा कलाम है। इधर मुश्ताक रहना है, ख्वाहिशमंद रहना है, डिजायरस रहना है, इसे लेने के लिए तड़पते रहना है। सब मिलकर शाउट करें आमीन। तीसरा रूहानी सप्लीमेंट दुआ है। क्या जी, क्या है? और यहाँ पर रसूलों के अमाल दूसरे बाब की 42वीं आयत का जो आखिरी जुज्व है वो क्या है, दुआ करने में मशगूल रहो। कहें, दुआ करने में मशगूल रहो। बी बिजी इन प्रेयर, डोंट स्टॉप प्रेइंग। और चर्च, तीसरा जो आपको सप्लीमेंट दे रहा हूं, और अमाल चौथे बाब की 31वीं आयत में लिखा, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, वाह, और वो सब रूहुल कुदस से क्या हो गए जी, भर गए, और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। मिलकर शाउट करें आमीन। तो जब वो दुआ कर रहे थे तब घर शेक किया था। दुआ आपके बदनी ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और दुआ जो है ये आमतौर पर आपके अंदर रूहानी हसासपन को पैदा करती है। आप हसासमंद हो जाते हैं, आपके अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है। दुआ जो है ये आपके अंदर रूहानी हसास समझे, एहसास, चले फीलिंग्स कह लें, सेंसिटिविटी को फीलिंग्स से आप कह लें, इसका अदर वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। आपके अंदर दुआ जो है आपके अंदर रूहानी एहसास को भर देती है। तुसी एक दूसरे का लिहाज करना शुरू कर देते हैं। जब आप दुआ नहीं करते तुसी एक दूसरे को चीरन की कोशिश करते हो, तुसी एक दूसरे को मारन की कोशिश करते हो। दूसरों की मुखालफत वो करता है जिसकी रूहानी जिंदगी बर्बाद हुई होती है। दूसरों को बर्बाद वो करता है, दूसरों की मुखालफत वो करता है जिसकी रूहानी जिंदगी दांव पर लगी होती है, जिसकी रूहानी जिंदगी एक्यूरेट है, रूहानी तौर पर बड़ा एहसासमंद होता है। किसी के कीचड़ नहीं उछालता चर्च। आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आप दूसरों पर कीचड़ उछालना छोड़ देंगे। मैं आपको ईमान से ये कह रहा हूं, इस मेडिसिन को लेना शुरू करें, इस सप्लीमेंट को खाना शुरू करें। ये आपके अंदर एहसासमंदी को पैदा करेगा, आपके अंदर की दोस्ती को बढ़ा देगा। ये आपके अंदर दुआ जो है आपके ईमान में दलेरी पैदा कर देगी। जिस मकान में वो रह रहे थे वो मकान हिलना शुरू हो गया दुआ के वसीले से।
फिर जब वो दुआ कर रहे थे तो रूहुल कुदस से, दुआ करने के वसीला से रूहुल कुदस हमारे अंदर जो मौजूद होता है वो शेक करना शुरू कर देता है। दुआ करने से रूहुल कुदस आपके अंदर तहरीक पैदा करेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी राहों को संवारेगा चर्च। और सुने, फिर जब वो दुआ कर रहे थे तो क्या लिखा है, फिर उन्होंने खुदा का कलाम फिर वो दलेरी से भी सुनाना शुरू हो गए। अगर आप रूहानी तौर पर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको यूनिटी में और मोहब्बत में फलने की जरूरत है। इफ्सियों के खात में लिखा है ना, यानी कमाल फरोतनी हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करो जी, बर्दाश्त करो। जिस शख्स के अंदर बर्दाश्त नहीं, जिस शख्स के अंदर तहम्मुल नहीं, जिहड़ा शख्स किसी दूसरे ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं करता, इसका मतलब वो रूहानी शख्स नहीं। और यहाँ लिखा है कि फरोतनी के साथ, तहम्मुल के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे की क्या करनी है जी, बर्दाश्त करनी है। इसलिए चर्च बर्दाश्त करने की, फरोतनी की, मोहब्बत की इस मेडिसिन को खाना शुरू करें। आपकी रूहानी तरक्की, आप रूहानी तौर पर बढ़ते जाएंगे। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप स्पिरिचुअली डेड हो रहे हैं। अगर आपके अंदर तहम्मुल नहीं है, आप स्पिरिचुअली मैसअप हो रहे हैं। अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, आपकी रूहानी जिंदगी का सत्यानाश हो रहा है चर्च। रूहानी मैसअप में आप स्पिरिचुअली चीजें बेतरतीबी में जा चुकी हैं, आप तितर बितर हुई हैं आपके घर की, आपकी रूहानी जिंदगी के घर की चीजें खराब हो चुकी हुई हैं चर्च। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। पांचवी जो बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो आपको रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए आपको शागिर्दियत की जरूरत है, एक उस्ताद की जरूरत है। बगैर उस्ताद आप कभी रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। बगैर उस्ताद आप कभी भी रूहानी तौर पर जानदार नहीं हो सकते। स्पिरिचुअल मेंटोर की बात कर रहा हूं, जो आपकी रहनुमाई करने वाला हो। आपका रूहानी उस्ताद ही आपकी कमजोरियों को आपके सामने बयान कर सकता है। हालेलुया। इब्लीस का क्या करो जी, मुकाबला करो। तो वो क्या करेगा, आपकी पॉकेट से भाग जाएगा, आपके दिमाग से भाग जाएगा, आपके दिल से भाग जाएगा, आपके घर से भाग जाएगा, आपके बच्चों की जिंदगी से भाग जाएगा, आपकी कलीसिया से भाग जाएगा, आपके ईमानदारों की जिंदगियों से भाग जाएगा। करो मुकाबला उसका, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो आपको पाकीज़गी की जिंदगी गुजारनी है। अगर आपने स्पिरिचुअली बढ़ना है ना, आपकी ड्रेसिंग होली होनी चाहिए, आपकी बात होली होनी चाहिए, आपके खाने पाक होने चाहिए, आपका देखना पाक होना चाहिए, आपका सोचना पाक होना चाहिए, आपकी बातें पाक होनी चाहिए, आपकी दोस्ती पाक होनी चाहिए, आपका किरदार पाक होना चाहिए, आपके घर के लोग पाक होने चाहिए, आपका चर्च पाक होना चाहिए। कलीसिया, तभी हम रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।